Hello everyone, my name is Jainil and I welcome you all to Echo with JP. This is the beginning of new financial year. This is the beginning of new educational year too. And this is the beginning of new Echo with JP. I am back with new interesting videos regarding to different topics of accounts and soon I will be posting videos on economics too. Today's topic is goodwill. If you look, this is a topic of 12th standard and I am in 12th standard too. I can very clearly say that this is one of the easiest chapter which you can understand, which you will be able to understand. I will say that because if I talk about Gujarat Board GSEB board, this chapter has the easiest questions which gives you easiest 12 marks. So we can say that this 12 marks are like free. This 12 marks are like 100% sure that you'll get this marks. But I will not focus on just 12th GSCB board because I am in 12th GSCB board, but I will teach you this topic as it would be helpful for CBSE students, it will be helpful for ICSE students, and obviously, if you cover both of that, it would be easy to understand for any state board student. Now let us start by knowing what is goodwill. Goodwill, sorry. What is it? Goodwill is an intangible asset which shows the reputation of the firm in the market. Now, why intangible asset? If you recall, if you have watched my videos from the first chapter in 11th, which was terminologies of accounting, in that I told you everything about what are intangible assets and what is goodwill too. What are intangible assets? Now, if you have solved final accounts of class 11th, you must know that while preparing the balance sheet, if you take this is the balance sheet, this is the asset side, and this is the capital plus liability side, right? When we used to look at the trial balance and we used to see that goodwill, it was on the debit side. Okay, so where do we used to write? We used to write on the asset side. Goodwill is an asset, is an intangible asset which shows the reputation of the firm. And why this reputation of the firm is required? ये रेप्यूटेशन फर्म की क्यों रिक्वायर्ड है? अगर आप देखो तो कोई भी बिजनेस अगर हमको चलाना है, अगर हमको if we want that it should be continued for a long time, then reputation of the firm is very much required in the market. If you have a good market reputation, then you can easily sell and get trust of the people around you and which will indirectly help you to increase your profit. I will say that for example, let's say DMart. There are, if you look nearby you, there are several Kirana stores. Many Kirana stores are available near you. But why do we trust DMart? Because of its reputation, because of its goodwill. हम जब भी डीमार्ट में जाते हैं हमें नॉर्मल प्राइस से तो कम प्राइस पे वहां पे चीज मिलती है। वो चीज वो क्यों प्रोवाइड कर पाते हैं? क्योंकि उनकी रेपुटेशन है, उनको पता है कि हमारे पास कस्टमर आएंगे बिकॉज दे हैव बिल्ड द ट्रस्ट ऑफ देयर कस्टमर्स। सो दिस गुडविल इज वेरी मच रिक्वायर्ड। लेट्स से एग्जांपल ऑफ डीमार्ट। ओके, मैंने अभी एग्जांपल दिया। अगर डीमार्ट लेट्स से अगर उसकी ऑल ओवर इंडिया में लेट्स फॉर एग्जांपल 10 ब्रांचेस है। ओके, 10 ब्रांचेस और एक ब्रांच को खड़ी करने के लिए मतलब टू एस्टेब्लिश वन ब्रांच उनको लेट्स से 1 CR रुपीस का कैपिटल चाहिए प्लस 1 CR का आप समझ लो कि उनको फर्नीचर चाहिए होगा और फॉर एग्जाम्पल और 1 CR का उनको गुड्स चाहिए होगा टू स्टार्ट वन ब्रांच ऑफ डिमांड विच विल कॉस्ट देम 3 CR। और ये 10 ब्रांच को बनाने के लिए कितना लगा होगा?
So 3 into 10 which will take around 30 CR. Okay. अगर कोई भी बिजनेसमैन डीमार्ट को परचेस करना चाहता है तो आप क्या करोगे कि उसको, जैसे आपको 1 करोड़ कैपिटल लगा, 1 करोड़ रुपीस का आपका फर्नीचर गया असेट, और 1 करोड़ आपका लगा गुड्स डीमार्ट की एक ब्रांच को एस्टेब्लिश करने के लिए. So which will take you around 3 CR. But when you will sell it to another person who is trying to purchase DMart, what price will you sell it? Now, obviously, you have built a DMart. I'm giving example. Let's say I have built DMart, okay? And for last 40 or 45 years, I have grown DMart all over the India, and I have built the trust of the customer. So I will sell this my firm, which is DMart, to the purchaser at not at 30 CR if I want to sell 10 branches or the DMart whole DMart the brand. Okay, I will not sell it at 30 CR. What I will do is, let's say 30 CR is the book value of DMart. But because how we have established, how we have gained the trust of the people, and how good we are in the market, that is our goodwill as per the definition. So what we will do, we will say that additional 15 CR is goodwill, which will cost 45 CR for the purchaser to purchase it. अगर कोई इंसान इसको परचेस करना चाहता है तो सेलर उसको 45 करोड़ रुपीस डिमांड करेगा टू सेल द होल डीमार्ट brand. Why so? 30 CR is the, let's say, capital assets and goodwill amount, but 15 CR is the goodwill. It's the trust, it's the reputation of the firm which DMart has built during the years in the market. Now let's move forward and know methods of valuation of goodwill. देखो एक्चुअल में क्या होता है पता है, हमारे टेक्स्ट बुक्स में ये है, पर एक्चुअल में गुडविल क्या होता है कि आप देखते हो कि हमारे फर्म कितनी है, अच्छा इतने सालों से हमने चलाया है, तो हम एस्टिमेट वैल्यू लगाते हैं कि ओके लेट्स से कि 30 करोड़ रुपए का तो हमारा कैपिटल गुड्स और असेट्स है, पर हम बेचने हैं, हमने 30-35 साल से एक ना एक बिजनेस चला रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, तो हम उसे इतना हमने बिजनेस ग्रो किया है उसका कुछ तो बेनिफिट हो हमें, हमने जिस रेपुटेशन हमने बनाई है मार्केट में उसका हमें कुछ तो क्या कहते हैं बेनिफिट हो, वो हम अपने मन से करते हैं, हम एस्टिमेट वैल्यू लगाते हैं कि हम बेचेंगे तो उनको, जैसे डीमार्ट का एग्जांपल लिया था तो हम उन्हें बेचेंगे तो 45 CR में बेचेंगे. हो भी सकता है कि वो डिमांड करे कि ओके 15 CR के बदले 14 CR कर दो एंड यू अग्री एट 14 CR 50 lakhs. ये भी हो सकता है, बट ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है गुडविल की, फिक्स्ड वैल्यू आप उसे नहीं कहते हो. बट अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसमें फिक्स सेट ऑफ रूल्स है, ऐसे रूल्स बनाया गया कि हमारी गुडविल अगर हमें वैल्यूएट करनी है तो कौन से मेथड्स होने चाहिए हमको, तो हमको पता चले कि ओके हमारी वर्थ मार्केट के अंदर इतनी है. उसके लिए 4 मेथड बताई गई है: एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. ये 4 मेथड होती है गुडविल को वैल्यूएट करने के लिए. अभी गुडविल कौन से केस में काउंट की जाती है, तो मेथड है, पर कौन से केस में हमें जरूरत पड़ती है गुडविल को काउंट करने के लिए. लेट्स से जिस भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो रहा है उसके अंदर आप गुडविल काउंट कर सकते हो. अभी समझो कि कुछ कंपनी में लॉस ही हो रहा है तो उसको तो ऊपर से लॉस में उसको सेल करना पड़ेगा, उनको गुडविल की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी कोई रेप्यूटेशन ही नहीं है मार्केट में. पर जिनकी रेप्यूटेशन है मार्केट में, जिन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है मार्केट में, वो गुडविल क्या कहते हैं वैल्यूएट कर सकते हैं. मैं बता दूं कि गुडविल को ऐसे तो क्या फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं. हम मार्केट में है, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो कौन से फैक्टर्स है जो हमारे हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो ब्रांड है उसको अफेक्ट करेंगे. तो पहला तो हो सकता है कि क्या कहते हैं कि लोकेशन कौन सा है हमारे बिजनेस का. आप समझो कि
फॉर एग्जाम्पल आप अहमदाबाद में रह रहे हो, आप सीजी रोड साइड कहीं रह रहे हो, विच इज लाइक द पॉश एरिया ऑफ अहमदाबाद. इफ यू लिव ओवर देयर and you start a clothing brand with unique material, unique styles, and you gain the trust of the people, and your firm has good reputation in that area. अगर आप वो सीजी रोड वाले एरिया में एस्टेब्लिश कर रहे हो क्लोथिंग का ब्रांड, तो क्या होगा कि आपको ज्यादा, क्या कहते हैं, कि ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है जहाँ पे इन सब का मार्केट है. वहां पे और बहुत सारे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं जिनकी रेपुटेशन है. अगर आप रेपुटेशन बिल्ड कर पा रहे हो वहां पे, तो आपका बहुत प्रॉफिट होगा. और वो ऐसी जगह है, जगह की वजह से लोग आपके ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं. कभी कभी आपने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो अगर फेक वॉचेस या फेक शूज भी पहनते हैं, तो आपको उस इंसान को देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये इतना कॉन्फिडेंस में है कि नहीं, इसे तो रियल ही पहना होगा. वैसे ही अगर कोई बिजनेस अगर आप ऐसे एरिया में एस्टेब्लिश कर रहे हो जिस एरिया की रेपुटेशन अच्छी है, तो it infuses that your business reputation will be also good. Now we say about second point will be is nature of the business. Let's say कि goodwill exists when a firm earns more profit, right? Which I already told you. And it has more profit margin due to the sales which they do. Okay. And what are the reasons behind the sales? That again comes to the reputation of the business, how good you are, if you are able to maintain the quality. These are the points. Then if we look forward is that मार्केट सिचुएशन. अभी कभी कभी क्या होता है कि आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, आप अच्छे से कर रहे हो, आप इकोनॉमिकल और कल्चरल फैक्टर्स देख के भी बिजनेस को आगे रन करवा रहे हो, पर कभी कभी ये चीज हो जाती है कि मार्केट में सिचुएशन ऐसी नहीं है. अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास स्टोर्ड वीट है, आपने वीट को स्टोर करके रखा है, जैसे अभी का जो टाइम है, अभी वो वीट और वो सब परचेस करने का टाइम है. पर अभी जब सब लोग उसको वीट को ग्रो कर रहे हैं, तब आप वीट बेच रहे हो, तो कौन खरीदेगा? क्योंकि जब हार्वेस्ट हो रहा है वीट, तब बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग प्रकार के वीट मिल पाएंगे, और अलग अलग प्राइस और अलग अलग क्वांटिटी पे मिल पाएंगे. अगर आप मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलते हो कि अभी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो भी वो गुडविल अफेक्ट होता है. आप कहो तो ये गुडविल का टॉपिक ना आप बीए के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो. ये हो गया हमारा. हमने तीन चीजें देख ली कि गुडविल क्या है, फिर मेथड्स क्या है गुडविल वैल्यूएट करने के लिए, और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं. अब आ जाते हैं हम इसके सम्स पे. हम सम्स करेंगे मेथड वाइज. ओके. फर्स्ट इज द एवरेज प्रॉफिट मेथड. अभी एवरेज क्या होता है, अब आप सिर्फ मेथड का नाम सोचोगे ना, तो भी आपको न्यूमेरिकल का 50% आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट इज एवरेज. एवरेज आपको पता है, प्रॉफिट आपको पता है, और एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने की मेथड करनी है हमको. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से कि ईयर हमें दे रखा है, लेट्स से 2012 13, 13 14, 14 15 एंड 15 16. यहाँ पे और एक ऐड कर देते हैं 2011 एंड 12. ये हमें कितने ईयर मिल गए? 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी. और हमें दे रखा है उसके सामने प्रॉफिट दे रखा है उस फर्म का. प्रॉफिट कितना है 11 का? तो लेट्स से 2 लाख. 12 13 का कितना है? तो 2,10,000. फिर कितना है 13 14 का? 1,90,000. 14 15 का कितना प्रॉफिट है? 2,15,000. और 15 16 का कितना प्रॉफिट है? लेट्स से 2,20,000. अभी आप एवरेज कैसे फाइंड करते थे कि ए बी सॉरी,
ABCDEF, ABCDEF, इतने स्टूडेंट है, लेट्स से 5 6 स्टूडेंट हैं, और आपने देखा है कि उनको लेट्स से XYZ ABC XYZ ऐसे मार्क्स उनको ऑब्टेन हुए हैं। तो आप क्या करते थे, टोटल मार्क्स कैलकुलेट करते थे और उनको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे डिवाइड कर देते थे। सेम हमको करना क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर। अभी इन सब का आप टोटल करो तो आपको टोटल मिल जाएगा 10,35,000। अगर आप इसे वो स्टूडेंट और मार्क्स वाले में देखो तो ये क्या हो गए, जो ईयर्स है 11 12 12 13 13 14 14 15 एंड 15 16, ये है स्टूडेंट्स और सामने है उनके मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, उनके जो मार्क्स है, सॉरी, उनके जो मार्क्स है उनको डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 10,35,000। एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है कि टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर्स। ये सिंपल है, जैसे करते थे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, नहीं, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माय बैड, सॉरी, टोटल ईयर्स। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, 10,35,000 और कितने ईयर्स है, 5 ईयर्स। तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 2,07,000। अभी गुडविल कब होता है, जब हमारा प्रॉफिट होता है। और हम कह सकते हैं कि जब हमने एक्सपेक्ट किया है कि लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ हमारा प्रॉफिट होगा, बट हमारा प्रॉफिट हो रहा है एक्स प्लस वाई अमाउंट, मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट किया था अमाउंट विच वाज एक्स, उससे भी हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसे गुडविल कह सकते हैं। एवरेज मेथड जो है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर गुडविल फाउंड करने की मेथड होती है, अगर आप कहो तो मैं इरेज कर देता हूँ, इतना इरेज कर देता हूँ। गुडविल फाइंड करने की फॉर्मूला क्या होती है कि एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड कर दिया, ये तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिला कि हाँ इतना हुआ, पर इस पे से हमें गुडविल कैसे मिलेगी, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ये जो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज अब क्या है, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ना आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखा, अगर उसको मैं रीड करूं तो उसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 इयर्स परचेज ऑफ लास्ट 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। अभी हमको नंबर ऑफ परचेज जैसे यहाँ पे दे दिया है कि 3 इयर्स परचेज मतलब 3 हो गया, एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना था, तो हमें कितना मिल गया, 2,07,000। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6,21,000। ये है हमारी कंपनी की गुडविल। हमारा प्रॉफिट 2,07,000 हुआ है, पर हमारे मार्केट में जो हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी जो रेप्यूटेशन है, उस हिसाब से हम देखें तो हमने, कोई कंपनी 6,21,000 रुपए का प्रॉफिट करे उतना हमारा गुडविल है। हमने किया तो प्रॉफिट एवरेज है 2,07,000 का, बट 6,21,000 रुपीज की हमारी गुडविल है, विच इज एन इंटेंजिबल एसेट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट दो है, विच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ना, बी आपने स्टेटिस्टिक्स में 11th में पढ़ा होगा, सॉरी, स्टेटिस्टिक्स में 11th में पढ़ा होगा, हम W1 W2 ये सब लेके सॉल्व कराया करते थे, उसके जैसा है, विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एवरेज प्रॉफिट जैसा ही है। और नेक्स्ट क्लास में हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड कंप्लीट करेंगे, और फिर लास्ट हमारा वीडियो होगा ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट।
सिंपल सिंपल है। एक 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 इलस्ट्रेशन या एक एक एग्जाम्पल से आप सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी रहेगा ये चैप्टर आपको समझने के लिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी टेक्स्ट बुक का आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हो। मैं क्या कहता हूँ, अगर कोई डाउट है तो उसे यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियो के मीडियम के थ्रू भी मैं समझाता हूँ। और अगर बड़ा क्वेश्चन है आपको है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उसे एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना के भी उसे समझा सकता हूँ। So that is it for today, all my friends. We'll meet in the next video with new interesting topics. Thank you.